Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub. I am going to explain today a legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. In this video, I will explain all the Hindi meaning of this poem stanza wise, so listen it carefully. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sleds when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. बहुत दूर नॉर्थलैंड में यहाँ दिन के घंटे कम और सर्दी के रातें इतनी लंबी होती है कि पूरी रात तक सोया नहीं जा सकता। यहाँ बर्फ़ पड़ने पर तेज़ रफ्तार से चलने भागने वाले रेंडियर को बिना पहियों की गाड़ी में जोतते हैं और यहाँ बच्चे अपने अजीब फर वाले कपड़ों में भालू के बच्चों से दिखते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. वह एक अजीब कहानी सुनाते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि वह सच होगी, परंतु फिर भी अगर मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें एक शिक्षा मिलेगी, संदेश मिलेगा। एक बार सेंट पीटर जब वह नीचे धरती पर रहते थे और उपदेश देते हुए घूम रहे थे, जैसे तुम जानते हो वह प्रायः किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. दुनिया की यात्रा करते हुए वह एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर एक छोटी सी औरत केक बनाकर उन्हें अंगीठी में पका रही थी। दिन लगभग समाप्त हो रहा था और वह व्रत के कारण दिन भर कुछ नहीं खाया था, बेहोश से रो रहे थे। अतः उन्होंने उस औरत से अपने केक के स्टोर से केवल एक देने को कहा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. अतः उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, परंतु जब वह पक रहा था तो उसने उसे देखा और सोचा कि देने के लिए यह बहुत बड़ा लगता है। इसलिए उसने आटा गूंथकर एक उससे भी छोटा केक बनाया, पर जब उसने उसे पलटा तो वह उसे पहले केक जैसा ही बड़ा दिखा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that, for she said, "My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away," so she put them on the shelf.
तब उसने गूथे हुए आटे में से एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको बेल बेल कर चपटा किया, पेपर की तरह पतला। उसे पकाया, परंतु उसे भी देने को उसका मन न हुआ, क्योंकि उसने कहा, मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूँ तो इतने छोटे लगते हैं, परंतु दूसरों को देने के लिए बहुत बड़े लगते हैं। अतः उसने उन्हें भी शेल्फ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर grew angry, for he was hungry and faint, and surely such as women was enough to provoke a saint. And he said, You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह भूखे थे और बेहोश से हो रहे थे, और निश्चय ही ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने कहा, तुम इतनी स्वार्थी हो कि मानव शरीर में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रय मिले, और आज की गर्माहट भी, तुम इन सब के योग्य नहीं हो। नाउ you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boarding and boarding and boarding all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन दिन भर सख्त सूखी लकड़ी में सुराख करके प्राप्त करोगी। तब वह एक शब्द भी न बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली गई, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोरा उड़ा, क्योंकि अब वह एक पक्षी कठफोरे में परिवर्तित हो गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as the coal in the flame. And every country schoolboy had seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. उसके सिर पर गहरे लाल रंग की एक टोपी थी। वह वैसी की वैसी रही, पर उसके बाकी के कपड़े लपट में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। कठफोरा एक काले रंग का छोटा सा लंबी चोंच और लाल कलगी वाला पक्षी होता है, और हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे जंगल में देखा है। यहाँ वह आज तक पेड़ों में रहती हैं और खाने के लिए पेड़ों की लकड़ी में सुराख करती रहती है। ये होब कैरी के द्वारा लिखी गई एक बैलेड है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप इसे समझ गए होंगे। इस कविता को अच्छी तरह से याद करें और अपने बुक से इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में समझें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।